Welcome back to another tutorial of our Java programming series. In the last video we will discuss about the functions. In this video we will talk about one of the new topic is a string class in Java. This is one of the most important topic in any programming language because most of the questions interviewer are asking in this topic. So that is why this is one of the most important topic any programming language, especially Java is also an important topic. So we will discuss today theoretical part, then after one by one methods will be discussed, predefined, and जो हम खुद से बनाएंगे उनको भी डिस्कस करेंगे और जितने भी प्री डिफाइन मेथड है स्ट्रिंग के उनको भी डिस्कस करेंगे. सो आज के लेक्चर के लिए मैं पीडीएफ ओपन कर लेता हूँ. सो आई विल ओपन फर्स्ट पीडीएफ, देन आई विल डिस्कस व्हाट्स द स्ट्रिंग एंड व्हाट्स द स्ट्रिंग क्लास, एवरीथिंग आई विल डिस्कस. ओके, फर्स्ट आई विल ओपन. Like, what's a string class? String in Java. String are the type of object that can be stored the character of the value, and in a Java string क्या है? Type of object है that can be stored the character of values in a Java. String is a non-primitive data type because it references a memory location where data is stored in a heap memory or string constant pool. Okay. String is a non-primitive data type because it refers a memory location where data type is stored in heap memory. अगर हम जावा के पर्सपेक्टिव से बात करेंगे, if I talk about in the Java perspective, so we have 8 primitive data types and string is not a data type, it is an object. String पहले से अगर आपने लेक्चर देखा होगा उसमें मैंने बताया होगा, लेक्चर नंबर 6 या 7 के अंदर है, उसमें ये लिखा हुआ है कि जो भी हमारे स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के हमारे पास ऑब्जेक्ट है ना कि डेटा टाइप है. ट्रीट एज अ डेटा टाइप ही करते बट इट्स नॉट एन डेटा टाइप, इट्स एन ऑब्जेक्ट इन जावा. और ये क्या करता है? बिकॉज इट रेफरेंस मेमोरी लोकेशन, ये क्या करता है? रेफरेंस करता है मेमोरी लोकेशन को वियर डेटा इज स्टोर्ड, जहां डेटा स्टोर है किसमें? हीप मेमोरी में या स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल के अंदर. इट रेफरेंस टू अ मेमोरी वियर एन ऑब्जेक्ट इज एक्चुअली प्लेस्ड. ये रेफरेंस क्या करता है? टू अ मेमोरी, उस मेमोरी को जहां पर एक्चुअली ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है. स्ट्रिंग इज द सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, और वी कैन से स्ट्रिंग इज एन array of characters. For example, like this is our string name, then I will pass the constant value. This is an Abid is treated as a character array. String treated as a character array, like index 1, index 0, 1, 2, 3, as so on. This is an address of first index. Like जैसे जावा arrays के अंदर होता है वैसे यहाँ पर भी string as an क्या कहते हैं? As an array of characters. So move to the next slide. So string class in Java. I will little bit zoom this one. Okay. So you are also visible. String class implement character sequence, seizable and comparable interfaces. These are the 3 interfaces string class implement internally. String is an immutable object, which means that it is a value cannot be changed after it's created. आपने जब string का object बनाया, इसका जैसे भी आपने बनाया उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो. Once you created object, you cannot change it after that value. अगर आपने उसमें कुछ वैल्यू भेजा होगा वो आप चेंज नहीं कर सकते हो क्योंकि ये एक फिक्स मेमोरी ब्लॉक बनाता है हीप मेमोरी के अंदर. This is because the string class is a reference type and reference type always immutable. जैसे कि रेफरेंस एक वेरिएबल होता है वो आप चेंज नहीं कर सकते हो, वो इम्यूटेबल होता है. वेयर यू क्रिएट अ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट इज स्टोर्ड इन अ लोकेशन इन मेमोरी and
the reference to that location is stored in a variable or in another object. The value of string object cannot be changed because it's stored at a fixed location in memory. ठीक है, जब तक ये हम चेंज नहीं कर सकते स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, क्या, क्योंकि बिकॉज इट्स स्टोर्ड इन अ फिक्स लोकेशन इन मेमोरी, एक पर्टिकुलर लोकेशन बनाता है मेमोरी में, उसको आप चेंज नहीं कर सकते. लाइक स्ट्रिंग क्लास इंटरफेस, character sequence that interface provides method for accessing the characters in a string following the iterated over that string class. ये इंटरफेस किस काम आता है? अगर आप पर्टिकुलर इंडेक्स को एक्सेस करना है, पर्टिकुलर कैरेक्टर को एक्सेस करना है स्ट्रिंग में से, या इटरेटिंग ओवर द स्ट्रिंग कैरेक्टर्स करना है, एक एक कैरेक्टर पे जाना है, तो तब आप कैरेक्टर सीक्वेंस यूज़ कर सकते हो. सीजेबल, दिस इंटरफेस अलाउज द स्ट्रिंग class to be a serialized, which means that it can be converted to a stream of bytes that can be stored in a file. Third one is this interface allows the string class to be a compare to other string object. कंपेरेबल क्या हो गया? जैसे हमारे पास दो स्ट्रिंग होगी, उनको कंपेयर करने के लिए आपको कंपेरेबल इंटरफेस का यूज़ लेना पड़ेगा, बट ये इंटरनली वर्क खुद ही करता है, हमें लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. So, to create a string using a 3 classes like string, string buffer, string builder, इन तीनों से आप ऑब्जेक्ट बना सकते हो. ये तीनों हमारे import java.lang string class implement a serializable, comparable and correct sequence interfaces. It will be uses like a import java.lang. This is a package. Here will be this string class provides us serializable, comparable and correct sequence. These are the three interface gives us this package. इन तीनों से आप स्ट्रिंग का कोई सा भी ऑब्जेक्ट बना सकते हो, स्ट्रिंग क्लास से, स्ट्रिंग बफर से, स्ट्रिंग बिल्डर से. इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे इन लेटर ऑन. मेमोरी एरिया इन जेवीएम. मेमोरी एरिया कैसे रहता है जेवीएम के? जैसे मेथड एरिया रहता है, हीप एरिया रहता है, स्टैक एरिया रहता है, पीसी रजिस्टर रहता है, नेटिव मेथड एरिया एंड स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल रहता है, जो हमारे में काम आता है, जहाँ पर हम अपने ऑब्जेक्ट को रखते हैं स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल के अंदर. तो इस पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे, किस वाले में? इस वाले स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल. नाउ स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल क्या होता है उसको देखते हैं. लाइक व्हेन यू क्रिएट अ string object using a new keyword then constant value. जैसे मैंने यहाँ पर एक string का ऑब्जेक्ट बनाया, उसके अंदर कुछ वैल्यू पास कराया, तो इससे क्या हो गया? न्यू कीवर्ड से ये हुआ कि इसने हमें दो ऑब्जेक्ट क्रिएट करके दिए. फर्स्ट वन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड इन हीप मेमोरी. पहला ऑब्जेक्ट तो कहाँ बनेगा? हीप मेमोरी में. एंड सेकंड ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड इन स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल. सेकंड ऑब्जेक्ट कहाँ बनेगा? स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल के अंदर. ये स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल, ये हीप मेमोरी कैसे दिखेंगे अभी मैं आपको ये एक्सप्लेन कर दूंगा विद द डायग्राम और समझा दूंगा कैसे ये काम कर रहा है. लाइक स्ट्रिंग नेम हुसैन. अगर आपने इस तरीके से स्ट्रिंग बनाया, न्यू कीवर्ड का यूज़ नहीं किया, तो ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट कहाँ बनाएगा? एक ही ऑब्जेक्ट बनाएगा, बट बनाएगा स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल के अंदर. स्ट्रिंग this create only one object. If you create a one more string 1 equals to new string Abid, okay, it gives us only this. We have created that object first string and fixed value is Abid. This is in literal. Then if also passes the same name Abid, so this str1 reference to that object, not for created at any new object in heap memory. In that case it will not create a new object because in heap memory he is present. ये आबिद पहले से heap memory में present है, तो ये दूसरा ऑब्जेक्ट बनाएगा नहीं, क्योंकि ये इसी को रेफरेंस करेगा. String object present in constant pool are not applicable for garbage collection because at reference variable internally in maintained by JVM.
जो भी स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल है उसके अंदर गार्बेज वैल्यू नहीं हो सकता, बिकॉज इट्स अ रेफरेंस वेरिएबल इंटरनली मेंटेन्ड बाय जेवीएम, जो जेवीएम खुद ही मेंटेन करता है. सो आई विल ओपन फर्स्ट. यहाँ हम like I will show here first. Back to the PDF. Now two ways to create a string object, like a string literal and new keyword. String literal, this is an example of string literal, using a string keyword, then variable name, then passes the value. If I talk about the string literal, here will be a explain here. Each time you create a string literal, the JVM checks the string constant pool. First, if the string already exists in the pool, अगर ये क्या करेगा, JVM चेक करता है स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल के अंदर क्या इस नाम से कोई स्ट्रिंग तो नहीं बनी है, कोई ऑब्जेक्ट तो नहीं बना इस आबिद नाम से. फर्स्ट इफ द चेक स्ट्रिंग ऑलरेडी एग्जिस्ट, अगर पूल के अंदर हो, a reference to that pooled instance is returned. तो ये क्या करेगा, रेफरेंस देगा. इफ द स्ट्रिंग does not exist in the pool, अगर नहीं होगा, then a new string instance is created and placed in that pool. For example, string 1 Abid and string 2 Abid, but s1 is a reference Abid, but s2 also reference Abid, not created a new. Okay, so second one is a new keyword. New keyword using a str then new string. New keyword ये क्या करता है, खुद के लिए एक दो वेरिएबल क्रिएट करता है. फर्स्ट एक तो हीप मेमोरी में, दूसरा स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल के अंदर. स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल के अंदर क्या जाता है, इसकी वैल्यू, और हीप मेमोरी में क्या रहेगा, रेफरेंस वेरिएबल. रेफरेंस के ये भी रहेगा, इसकी दो कॉपी रहती है, एक तो हीप में, एक कांस्टेंट पूल के अंदर. वो मैं अभी आपको समझाऊंगा कैसे ये वर्क करता है. str इज अ रेफरेंस वेरिएबल, इसको हम रेफरेंस वेरिएबल कहते हैं जिससे हम एक्सेस कर सकते हैं इस डेटा को. In such cases, JVM will create a new string object in normal non-pool heap memory, and that literal hello world will be placed in the string constant pool. The variable str will refers to that object in heap and non-pool. क्या बोल रहे हैं, इन सच केस JVM will create a new string, अगर JVM ने नया string बनाया ऑब्जेक्ट इन नॉर्मली नॉन पूल, हीप मेमोरी के अंदर नहीं, स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल के अंदर नहीं, बाहर वाले हिस्से में, हीप मेमोरी में, जो नॉन पूल हम कहते हैं. एंड लेटर हेलो वर्ल्ड will be placed in the string constant pool. The variable str will refer to that object in heap non-pooled. इसको ये क्या करता है, रेफर करता है किसके अंदर, हीप मेमोरी के अंदर. Like this is an one more string I have created like this, and using a concat method like Abid. In case in heap memory new object is created, Vani Abid and string constant pool Abid. किसके अंदर कौन सी मेमोरी पड़ेगी, वानी आबिद किसके अंदर जाएगी, स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल के अंदर. आबिद किस में रहेगा, स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल के अंदर आबिद जाएगा, वानी आबिद किस में बनेगा, हीप मेमोरी के अंदर. String object is immutable in Java because string object are cached in string pool since cached string. So let I will explain here. जैसे कि अगर मैं यहाँ पर एक ठीक है, ये हमने एक गोल बनाया, एक और इसमें बनाते हैं हम. like this. ठीक,
इसको मैं अभी इस वाले को क्या कहेंगे, स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल। अगर हम यहाँ पर टेक्स्ट एरे लेते हैं, टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट एरे को बाद में हम यूज़ करेंगे, पहले मैं आपको बताता हूँ। जो ये अंदर वाला एरिया होता है, यह होता है स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल। जितने भी ऑब्जेक्ट्स लाइक आई विल राइट हियर स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल, ये होता है स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल। और ये बाहर वाला जो होता है, इसको हम कहते हैं हीप, हीप मेमोरी। ये हीप मेमोरी हो गई। अब जब हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, अब हमें चाहिए टेक्स्ट बॉक्स। जैसे हमने ऑब्जेक्ट बनाया, like I create object string str, इसमें मैंने पास कराया ये। तो ये क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट की लोकेशन कहाँ बनेगी, इस वाले के अंदर। किस वाले के अंदर, str क्या करेगा, यहाँ अपनी इस आबिद की स्पेस जो है ना, ये यहाँ पर बनेगी। बट अगर हम वापस से यहाँ पर एक और ऑब्जेक्ट बनाते हैं, गिव मी 1 मिनट, वापस से एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, स्ट्रिंग str1 इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग, और इसके अंदर पास कराएंगे। तो यहाँ पर मैंने वापस से क्या किया, एक हेलो नाम से एक वेरिएबल पास कराया। तो इन केस क्या होगा, यहाँ पर दो मेमोरी ब्लॉक बनेंगे, एक तो बनेगा स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल के अंदर, एक हीप मेमोरी के अंदर। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अगर इसके अंदर मैंने एक और, एक सेकेंड, गिव मी 1 मिनट, अगर मैंने यहाँ पर एक और वेरिएबल बनाया स्ट्रिंग str2 और उसके अंदर न्यू करके वापस से स्ट्रिंग, उसमें वापस से हेलो डाल दिया, और एक और स्ट्रिंग बना दी str2 3, और उसके अंदर मैंने वापस से आबे डाला। ठीक है, अब एक और केस क्या था हमारे पास, दिस वन, इसके अंदर कॉन्केट किया हमने, यहाँ पे लिखते हैं स्ट्रिंग str4, ऐसे वेरिएबल बनाया, उसके अंदर हमने दिया जैसे कि हेलो दे दिया, वेलकम देते हैं, वेलकम दिया, और s डॉट कॉन्केट किया, उसके अंदर मैंने स्पेस देकर एक हेलो लिखा, डियर लिख दिया। ठीक, तो ये क्या करेगा, इसके साथ ये s4 के साथ ही कॉन्केट करेगा, str4 के साथ ही कॉन्केट होगा, वेलकम डियर आएगा, और ये कैसे मेमोरी बनेंगे वो भी आपको समझाता हूँ। बट अगर हमारे पास ऐसे होता, ठीक है, पहले इसको मैं आपको समझाता हूँ। फर्स्ट टाइम str ऑब्जेक्ट था आबिद, तो इसके अंदर मेमोरी बन गई, एक ही मेमोरी बन गई, किसके अंदर, स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल के अंदर। बट अब हमने दूसरी एरे बनाई, दूसरा स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बनाया, तो इसकी मेमोरी कहाँ बनेगी,
इस वाले सेकंड वाले की अगर हम इसकी चेक करेंगे, ये हेलो, ये वाले को, ये क्या करेगा, दो मेमोरी ब्लॉक बनाएगा। एक तो हीप मेमोरी में, हीप मेमोरी में क्या रहेगा, ये तो यहाँ पर भी हेलो प्रिंट कर देगा, हेलो, हेलो यहाँ पर भी रहेगा और इस वाले के अंदर भी रहेगा। तीसरा क्या बनाया, वापस से हमने हेलो नाम से बनाया। अब इस बार क्या होगा, ये जो str1 था ना, str1, ये तो रेफरेंस देगा, ये str1 किसको रेफर करेगा, इस आबिद को, और ये str1 किसको रेफर करेगा, इसको भी, और इसको भी कर देगा, इसको भी कर देगा। इसके पास दो रेफरेंस वेरिएबल है, दोनों को एक्सेस कर सकता है str से। और यहाँ पर क्या होगा, ये str2 किसको रेफरेंस करेगा, अगर इसकी बात करेंगे तो ये तो यहाँ पर इसको एक्सेस करेगा, क्योंकि ये न्यू ऑब्जेक्ट नहीं बनाएगा हीप के अंदर, स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल के अंदर ये नया ऑब्जेक्ट नहीं बनाएगा। यहाँ तो बना लेगा बट अंदर नहीं बनाएगा, ठीक। और जैसे वापस str3 आया तो ये किसको, ये वापस है इसको कॉल करेगा, न्यू ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि पहले से ही चेक करेगा कि अगर स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल के अंदर है इस नाम से कोई लोकेशन, इस नाम से कोई मेमोरी है, तो ये नहीं बनाएगा। ये खासियत है इसके अंदर, ऐसे वर्क करता है ये स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल के अंदर। इसको हम, इस वाले ब्लॉक को हम कहते हैं स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल, और बाहर वाले को हीप मेमोरी, जो बाहर वाला ब्लॉक है। बट इस वाले में क्या होगा, स्ट्रिंग 4 के अंदर, स्ट्रिंग 4 के अंदर पहले तो वेलकम बनेगा, यहाँ पर वेलकम बनेगा यहाँ पर और वेलकम डियर पूरा के पूरा यहाँ पर बनेगा। अगर मैं इसको इरेज करूँ, यहाँ पर लिखता हूँ वेलकम डियर, यहाँ एज इट इज पूरा एक ऑब्जेक्ट बनेगा। बाहर क्या बनेगा, डियर नाम से एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, यहाँ पर एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा डियर नाम से। तो ये क्या करेगा, दो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया इसने, एक तो इसको रेफरेंस भी करेगा, इसको भी रेफरेंस करेगा, इसको भी कर सकते, इसको भी कर लेगा। ऐसे ये अंदर वर्क करता है मेमोरी में, स्ट्रिंग के अंदर। स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट आकर चाहे आप न्यू कीवर्ड यूज़ करो, चाहे आप स्ट्रिंग लिटरल यूज़ करो। स्ट्रिंग न्यू कीवर्ड से क्या होता है, दो मेमोरी ब्लॉक बन जाते हैं। इस वाले से क्या होगा, खाली एक पर्टिकुलर ब्लॉक बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा, वो कहाँ बनेगा, स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल के अंदर। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा। दिस इज़ ऑल टुडेज लेक्चर, एंड आने वाले लेक्चरों में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे मेथड्स को, और भी सीखेंगे स्ट्रिंग वर्क कैसे करता है। आज के लेक्चर में इतना ही हम पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगता है बनाना, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।